Assalamu alaikum. My name is Musfira bint Firas and I'm the youngest motivational speaker. आज हमारे साथ हुसैन बसराई मौजूद हैं. Sir, can you please introduce yourself? Well, I am a chartered accountant, but now I'm retired from active life, right? But my career was that I did my commerce and did my training contract in London with a firm which is Pete Marwick Mitchell and Company. Came back over here, well, worked there after qualification also, but then came back over here and joined the correspondent firm, which at that time was Tasir Hadi Khalid and Company. Later on, Tasir Hadi became a correspondent firm and then a member firm. So name of the firm was KPMG Tasir Hadi and Company, जो आज भी नाम है. I retired 5 years back. Today, mashallah, the practice is of more than 44 partners. And the name of the firm is KPMG Tasir Hadi and Company and has got offices in Karachi, Lahore and Islamabad. I'm very curious. What is your success story? The success story is something when I decided to go into a profession which I liked. So you have addressed the issue of success because you will do your best then to succeed. So always one main reason is that you select a profession which you like, one, so that you then enjoy doing that work, right? And zahiri baat hai, it is this profession also is not very easy, but it's not difficult also in the sense because दूसरा issue ये है कि यहाँ आप exam देते हैं while working as well. So remember that you are doing both the things. You have got your exams as well as you have got a training contract which you have to complete. The training contract ranges with about 4 years का time होता है. So you have to devote. When you select a profession, then you have to be working hard for it. And the success is on the way then. That is the best way, you see. You made the right decision in that case. That's very, very important, you see. The decision making is very important, you know. सर आपने एक कॉलेज भी बनाया है, कॉमिक्स नाम है उस कॉलेज का. तो सर आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप एक कॉमिक्स कॉलेज बनाएं? हमने जब स्टार्ट किया था ना तो हमने इसलिए किया था कि गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज वाज द ओनली कॉलेज इन कराची विच वाज अ गवर्नमेंट कॉलेज. सो वी थॉट कि यार यहाँ कराची के जैसी इसके अंदर कोई प्राइवेट कॉमर्स कॉलेज नहीं है. तो हम जब वहाँ से निकले ना तो सबने डिसाइड किया कि वी शुड टेक इट एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर्स कि हमको यहाँ कॉमर्स कॉलेज प्राइवेट सेक्टर की बनानी है. हुआ ये कि 70 से लेके 80 तक 10 साल तक सब बाहर चले गए फॉर देयर एजुकेशन. When we came back, immediately we formed the trust by the name of Comex Educational Trust, which is a not for profit making, right? फिर हमने क्या किया 90 हमने हमारी alumni से पैसे जमा किए. We collected more than 30-40 million rupees and we dedicated the various classrooms in the name. For example, हमारी वो कॉलेज है उसमें क्लासरूम जो है क्लास 1 क्लास 2 नहीं है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एमसीबी का रूम है, ये यूनिलीवर का रूम है. इट्स अ डेडिकेटेड रूम्स, यू सी. टू हैव दिस कॉलेज we then called it, now that college is known as Comex College. Comex किस लिए कि हमारा जब गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के हमने एक ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन था उसका नाम था कॉमेक्स ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन. तो इससे हमने ये कॉलेज का नाम कॉमेक्स कॉलेज रखा है. लेकिन जो ट्रस्ट है हमारी उसका नाम है कॉमेक्स एजुकेशनल ट्रस्ट वेयर ऑल द फाउंडर ट्रस्टीज वेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज. Sir, so how do you feel about your achievements? जैसे आपने बहुत सारी achievements करी होंगी, आपका 45 years का almost 45 years का experience है. So how do you feel about your achievements? I think I'm very clear that whatever I wanted to achieve in life, I've really tried to achieve that and have been able to, enjoy that period as well. Zahiri baat hai, working experience of more than 45 years means that your whole life is gone now, right? So I till my retirement, I was with this firm and I retired as a senior partner of the firm, you see. Oh, sir, आप अभी कॉमर्स तो बहुत आम हो गई है, सब लोग उसको चूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसको चूज कर रहे हैं. तो सर आपको क्या लगता है in the future what would be the scope of commerce? Okay, I'll be very honest with you. Commerce now is not really something which one should go for. Commerce के subjects दूसरे आपके इसमें भी हैं. Because your fundamentals have to be what?
कॉमर्स सब्जेक्ट तो आपको पता है इसमें अकाउंटिंग है, राइट, एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, बट मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. Yeah, Okay. mathematics is Mathematics is an any science. For example, when you take medical, you don't have any subjects which are related to commerce. When you take a degree of bachelor's in economics, for example, you are keeping your options open. Once you complete that, you can go to commerce. You can even go to your engineering. कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, you see. So subjects की selection बड़ी जरूरी है. Even if you are going to go for one, you can select other subjects as well, which are going to help you in the longer term as well for other courses. सर आपकी एडवाइस क्या होगी फॉर यंगस्टर्स दैट आर ट्राइंग टू परस्यू कॉमर्स दीस डेज? अब देखें, कॉमर्स जब आप लेते हैं ना तो फंडामेंटली यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन इन बैचलर्स ऑफ से बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना. देन नाउ देयर आर हमारे वहाँ जैसे अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स है, ये सारे जो प्रोफेशन है ना, कॉमर्स के लोग नॉर्मली वहाँ जाते हैं ना. लेकिन अब ये हो गया है कि कॉमर्स लेने से सिर्फ नहीं जाते, दूसरे सब्जेक्ट से भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए वो. You see, so I mean, you don't tie down your option. That's the reason why I feel कि subjects ऐसे लेने चाहिए कि अगर आप later on जाके suppose कि कुछ और भी लेना चाहते हो तो उसका भी थोड़ा background होना चाहिए. Best is mathematics होना चाहिए जरूर, हमेशा ले, ठीक है, add math भी होना चाहिए अगर आप ले सकते हैं तो. So it all depends on, because you see at times you may go for something, you may decide after 1 year क्या है, वो तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आपके सब्जेक्ट जो होंगे अगर उसी के लिए होंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे ना. सर आप बताएं, मतलब मुझे कोई आप मैसेज देना चाहेंगे या कोई एडवाइस देना चाहेंगे? तो मैंने आपको बहुत सारे दे ही दिए बिफोर, इनफॉर्मल बाजी के अंदर भी अपना दे दिए, बट एज आई सेड कि देखें, आई फाइंड, बिकॉज आपने जो मुझे वो चीजें भेजी थी ना, उनकी एक स्पीच वाली भी ना, दैट वाज आल्सो वेरी गुड. यू आर एंटरप्राइजिंग पर्सन एट दिस एज, व्हिच इज वेरी गुड, दैट यू शुड कीप अप. देखिए, सिर्फ स्टडीज नहीं करें, these other activities also should be there. That will help you to build your career in a more better way. आप समझे? एक्स्ट्रा करिकुलम इज वेरी मच. आप कोई गेम्स खेलती हैं? जी मैं खेलती हूँ. क्या खेलती है? बास्केटबॉल खेलती है? गुड, तो यू कंटिन्यू विद दैट. बैडमिंटन एंड मोर. अच्छा, क्रिकेट में तो पाकिस्तान परफॉर्मेंस देख के इंटरेस्ट नहीं होगा अभी. नहीं, क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है. अब तो खत्म हो गया, आगे एक और वर्ल्ड कप गया, यू सी, दैट इज व्हाट इट इज, यू नो. बट as I said, one has not to be only studious. ये ध्यान में रखना. You should have other activities as well, other constructive activities. जैसे अभी आपने कहा कि मैं गेम्स भी खेलती हूँ. Other than आपको को तो दूसरा भी इंटरेस्ट है ना. You should be interested in dramas and other things as well. Yeah, I'm very interested in theater and theater. That's very very important. See, yeah. Literature is very important. Na? That is the main thing. Na? So for you, and I'm sure that you will be able to do it knowing your background up to now. If you want to understand what a CA profession is, very simple, there is a website of ICAP. You will get full information over there. Problem ये होता है कि इस वक्त शुरू में जब जैसे मैं प्रोफेशन में था, so we did not have any women coming in the profession. But now you will be surprised that CA profession approximately has gone about 30 to 35% now. जो है, girls are coming in the profession because it's a qualification which is a lifetime qualification for you. Once you become a chartered accountant, then जिंदगी में आपको कोई और इशू नहीं होता है. You see, अच्छा, थोड़ा फर्क इसमें ये होता है कि when you get married, अब जाहिर बात है कि वो फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि when you are a chartered accountant, then you would like to work. अब वो आपका हस्बैंड ने क्या करना है या आपको पता नहीं है, बाय द वे, यू सी, इट्स टू अर्ली. बट आपको जरूर चॉइस करते हुए देखना चाहिए कि आपको क्या लेना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी, बिकॉज कैरियर डेवलप इस तरह से होता है कि वंस व्हेन यू डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं था, आई वाज इन बीबीएस पारसी हाई स्कूल. फ्रॉम क्लास 8th आई न्यू कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, तो मैंने सब्जेक्ट ही कॉमर्स ले लिया था. तो देन आई टुक अकाउंटिंग एटसेट्रा. माय सन, उसने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, लेकिन उसने ए लेवल के अंदर जो सब्जेक्ट्स लिए थे वो मैथ्स लिया था, एड मैथ्स लिया था, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स. उसके लिए वो इजी इसलिए था कि उसको इंटरेस्ट ही था पहले से. तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग इज अ बोरिंग प्रोफेशन. अगर आप सुनेंगे बहुत मरतबा कि वो जो स्टाइल है, मुंशी वाली स्टाइल होती है ना, कि नहीं करना है हमें.
बहुत लोगों के ओपिनियन में वो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है ना वो, लेकिन वो बोरिंग नहीं है फ्रेंकली। अच्छा देखिए ना, बोरिंग सब्जेक्ट है एंड इफ इट मेक्स योर लाइफ, हाउ डज इट मैटर? जिंदगी अगर आपको प्रॉपर सेटलमेंट, ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। अगर आप एक चीज में इंटरेस्ट ले लेंगे वो खुद ही आसान बन आई जाएगा। वाज जस्ट गोइंग टू से दैट इंटरेस्ट विल क्रिएट फॉर यू द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आई वुड नेवर टेल यू टू गो टू दिस प्रोफेशन। यू सी, इंटरेस्ट होगा तो ही जा रहा। अच्छा, एक और फायदा ये जो कोई अभी फर्क नहीं पड़ता है, इवन इफ यू टेक कॉमर्स सब्जेक्ट्स यू कैन स्टिल गो इन IBA एंड डू बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इफ यू हैव गॉट स्ट्रेंथ ऑफ मैथमेटिक्स एंड अ कपल ऑफ अदर सब्जेक्ट्स तो इट हेल्प्स यू एट दैट टाइम। अभी हमें चूज करना होगा कि हमें प्री मेडिकल लेना है, प्री इंजीनियरिंग लेना है, या फिर हमें कॉमर्स लेना है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, आपने कॉमर्स पे क्यों डिसाइड किया है? रीजन क्या है? एक्चुअली कॉमर्स के जो मैंने पूरा देखा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे, और मेरी मैथ्स भी काफ़ी बेहतर बोलूँगी मैं, और मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट भी बहुत है। सो आई वाज थिंकिंग मैं कॉमर्स लेके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में या तो कंप्यूटर साइंस ले लूँ या एड मैथ्स ले लूँ। नहीं तो ये तो बिल्कुल ले गया, तो दोनों नहीं। मुझे एक चीज बताएं, कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स है? कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है आपके पास, बिजनेस रिलेशन से आई थिंक सो, और इकोनॉमिक्स। अच्छा, सो व्हाट यू आर एंड बट तो स्ट्रिक्टली अगर आप मैथमेटिक्स को इंक्लूड करती है, एड मैथ्स को इंक्लूड करती है, तो ये तो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन दैट। ए लेवल में जाकर आप एक सब्जेक्ट, कोई सा भी एक सब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे और आप उस कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास, आप उनमें से चूज कर लेंगे। जैसे ए लेवल में अभी हमारे पास ओ लेवल में चॉइस नहीं है लॉ की, लेकिन ए लेवल में हमारे पास लॉ की चॉइस है। तो ऐसे और भी ऑप्शन है जो अभी हमारे पास ओपन नहीं है ओ लेवल में, लेकिन ए लेवल में जाके वो ओपन हो जाएंगे। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप एक काम जरूर करें, नॉट बिकॉज के मैं चार्टर्ड अकाउंट इसलिए कह रहा हूं आपको, ICAP की वेबसाइट पे जरूर जाएं, just see the examination, the subjects over there, whether they interest you or not. तो आप जरूर ये कर सकती है कि अभी भी कॉमर्स ले और सब्जेक्ट्स वहां से सिलेक्ट करें फॉर योर प्रोफेशन। देखें, ऑल डिपेंड्स, इफ यू आर अ बिजनेस माइंडेड, व्हेन आई से बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो हेल्प्स यू, बिकॉज you are then in a business where you can do your own record keeping. This is very very important. तो आप वो सिलेक्ट, बिकॉज आप कॉमर्स, मैंने तो कॉमर्स लिया ही था विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मेरे तो जहन में था कि मैं कॉमर्स करूंगा। मेरे जहन में तो यूनिक था बाय द वे, मैं तो ये सोचा था कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूंगा, यहाँ अगर मैं होऊंगा तो मैं IBA। तो मेरा ये हुआ था कि मुझे ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट लेट मिला, तो एक सेमेस्टर मैंने IBA का भी यहाँ कंप्लीट किया था। That is the thing, you see, which was a rare thing, क्योंकि मैं ऐसे बैठना नहीं चाह रहा था। तो जैसे my metric finished at the end of 1970, मैं गया था लंदन, I went sometimes in June, तो वो जो मुझे पीरियड मिला उसमें मैंने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया। बिकॉज बाय द वे फ्रेंकली अगर बाहर नहीं जाना है और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं करनी है, लम्स फॉर मी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो लाहौर में, वेरी वेरी गुड। IBA इज नॉट बैड ऑल्सो बाय द वे। IBA भी जो है वो अभी स्टैंडर्ड में आ गया, बीच में थोड़ा खराब हो गया था, बट इट्स ओके नाउ। बट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज की फॉर योर फ्यूचर कैरियर में, ये सबसे जरूरी। हमारे वहाँ होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ, एंड ये भी मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरे पास, जो मैं तो क्योंकि आई वॉज इन प्रोफेशन, जो लोग आते थे ना उनकी थिंकिंग अजीब होती थी कि भाई सवाल करते थे कि मैंने कहा आपको ये यहाँ क्यों आना है, कह रहे पैसे ज़्यादा है ना इसके लिए। तो देखो, पैसे ज़्यादा इज नॉट द ओनली रीज़न ना, ये भी ज़रूरी है ना, दैट इज द मेन। जो आप आज अगर आपने सही डिसीजन बनाया तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, 101%। अगर आपने प्रेशर में आके कोई डिसीजन बना लिया तो फिर फ्यूचर। अच्छा, आपको तो एक एडवांटेज भी है ना, यू हैव गॉट अ बिजनेस विच इज माशाल्लाह गुड। सो अगर आपको ये इवेंचुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी साथ भी करना है इसके, तो यहाँ भी हेल्प करेगा ये भी मैं बता दूं, यू सी, बिकॉज यू सी दिस एजुकेशन नेवर गोज टू वेस्ट। जो भी आप करेंगे, जैसा भी आप काम करें, आप उस फील्ड में सक्सेसफुल, you are always going to be going to benefit yourself, you see, but selection is very important, ये बड़ा जरूरी है। Don't make a mistake there, you should select what you like, don't select anything which you don't like, but just keep it in mind कि before you do the selection, do a bit of research। जैसे अभी जैसे आपने कहा कि आपको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, आपने कहा प्री इंजीनियरिंग इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है कि बेटा आजकल कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर स्टडीज के अंदर
I'll just give you an example. शुरू किया था हमने कॉमर्स में, and you'll be surprised to know it's first year and intermediate, right? Today there are 1600 students and there are only 132 commerce students. The rest are other disciplines. Pre-engineering, computer studies, pre-medical, and वो जो आपका अपना humanities होता है ना, एक और humanities you see. So what I'm trying to tell you कि decision making should always be done. This is your time actually 8th से लेके 9th तक जाते हुए कि आपको क्या करना है. बस एक कोड भी है ना इसी के रिलेटेड, वॉट एवर यू आर जस्ट बी अ गुड वन. आप जिस भी फील्ड में जाएं बस अपना बेस्ट दें, और जो बेस्ट डे नहीं, लेकिन उस फील्ड में जाओ बेटा जो आपको इंटरेस्ट. yes, I was just good. तो it should interest you ना, तो ही फायदा होगा ना. अगर आपको, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, अब्बा आपको नहीं कहता क्या ये लेना, ये फायदा नहीं है भाई साहब, है ना आपके लिए. यू शुड डिसाइड योरसेल्फ. एट द एंड ऑफ द डे इट्स माय डिसीजन. डिसीजन. लेकिन मैं क्यों, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ट अकाउंटेंसी, बिकॉज ये जो बिजनेस भी है ना आपका, उसमें भी ये बड़ा काम आएगा. क्योंकि फिर वो अकाउंट्स पूरे मेरे ही कंट्रोल में आ जाएंगे, सब कुछ आपके ही कंट्रोल. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज. देखें हमारी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी भी वैल्यू ऑफ फिगर्स इज नॉट देयर. पीपल डू वर्क विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस. बजट बनता नहीं है, ये होता नहीं, ऐसे ही चलता है काम, यू सी, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी. तो मैं जो सजेस्ट करूंगा आपको कि आप आईकैप की वेबसाइट देखें, सब्जेक्ट देखें. इफ यू वांट यू कंसल्ट मी, नो प्रॉब्लम, यू कैन फोन मी एनी टाइम, यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप, यू सी, ऑन सब्जेक्ट वगैरह. मुझे कोई प्रॉब्लम. मैंने इन माई लाइफ आई हैव एक्चुअली हेल्प्ड सो मेनी पीपल. आई डेवलप their you know in terms of selection of subjects and their careers, you see. अच्छा, हमारे वहाँ प्रॉब्लम ये, and I'm sorry कि ये चीज होती है, and at times parents don't take even interest in this, which unfortunately is not okay. लेकिन है, क्योंकि इसलिए है कि ये सिस्टम अलग है ना हमारी. यार हमारा चलता है, वो चल जाएगा, कर लेगा भाई, ये कर लेगा, यू सी. मेरा भी एग्जैक्टली ये था. मेरे पेरेंट्स टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट इंटरेस्ट लिया, क्योंकि आपके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है. यू कैन इजीली कैपिटलाइज वॉट एवर यू वांट, यू कैन डू इट. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ गोइंग टू लम्स. थैंक गॉड यू कैन अफोर्ड दीज थिंग्स. यार नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड दीज थिंग्स आल्सो, बाय द वे, रिमेंबर दैट. तो ये आपके पास ऑप्शन सब है, तो सिलेक्ट करके ले रहा जो भी लो ना, क्योंकि जो मैं आज लूंगी डिसीजन वो मेरा फ्यूचर का होगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, यू नो. तो ये बड़ा, यू हैव टू बी वेरी 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 वेरी, आई वुड से, प्रूडेंट इन मेकिंग द सिलेक्शन. बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये क्यों ले लिया, यू सी. रिग्रेट पे नहीं रहना, ऐसा चीज चूज करनी है जो आपको भी एक सेटिस्फैक्शन. How has been your result up to now? अप टू नाउ माय रिजल्ट हैज बीन वेरी गुड. अभी हमारे एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट टर्म के, तो उसका रिजल्ट अब देखते हैं क्या आता है. Very, very good. My son went and did this because I was doing it. मैंने उसको कभी नहीं कहा. I never told him to take chartered accountancy. Never. उसने तो खुद डिसाइड किया, you see. मुझे देखा होगा कि भाई ये कुछ ये कर रहे हैं, चलो अच्छा है तो मैं ये कर लूँ. He qualified from UK as I qualified from UK. अब्बास ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी यूके से की है और मैंने भी वहीं से की थी, you see. वो अभी दुबई के अंदर है. He was in KPMG, but there are 4 global firms: KPMG, PwC, Ernst & Young and Deloitte. इसने अभी 1 महीने पहले KPMG से रिजाइन कर लिया, बिकॉज बड़े अरसे से आजकल यंगस्टर्स, आप भी तो यंगी हो इधर, और यंगस्टर्स बड़ी डिफरेंट माइंड के होते गए. हम तो कंजर्वेटिव थे. मैंने तो जिंदगी के अंदर एक ही कंपनी के साथ काम किया है. आई वाज विद पीट मार्विक इन लंदन एंड विद KPMG ओवर हियर फॉर माय एंटायर 45 इयर्स. उसको मुझे बड़े अरसे से कह रहा था मैं छोड़ दूं. मैंने कहा देखो मुझे पूछोगे तो इट विल नॉट बी ओके फॉर यू. मैं तो कहूँगा यार रहने दो यार. सो व्हाट ही हैज नाउ जॉइंड, ही हैज जॉइंड अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इन दुबई. उसका नाम है अजूरा करके, AZURA. You can go and check the website. You see, he is joined about a month back now. You know, let's see his career is going to be. मुझे तो कोई वरी नहीं है. Mindset very different हो गया. हाँ, वो totally different. But he's joined as the head of finance in the group. So he's a group CFO. You see. That's wonderful. That is the thing. ठीक है ना? So all the best to you. Yeah. Thank you very much, sir. कि आपने अपना precious time हमें दिया. Thank you very much. It was good to meet you.